प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। థ్యాంక్ యూ. అతిథులందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వెంటనే అందరూ దయచేసి ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడాను జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. దయచేసి ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడాను జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. కైండ్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ కైండ్లీ ప్లీజ్ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. Please rise for the national anthem. దయచేసి సుఖాసీనులు కండి. Thank you very much, sir. With the kind permission of the Chief Secretary, may we hand over the proceedings, sir. Thank you. नमस्कारम. तो तस्वीरें ये सीधी आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चौथी बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार। चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह है आज और माना यह जा रहा है कि पवन कल्याण भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और बीजेपी से 1 मंत्री बनाया जाएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की सरकार बन रही है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मंच पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बतौर सीएम नायडू का ये चौथा कार्यकाल होने वाला है और इस नई सरकार में जनसेना भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। आईटी पार्क में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कुल सीटें 175, बहुमत के लिए 188 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 164 सीटें एनडीए की आई हैं। ऐसे में शानदार प्रदर्शन रहा है यहाँ पर एनडीए का। आंध्र प्रदेश में टीडीपी अकेले अपने दम पर 135 सीटें लेकर आई, जनसेना पार्टी की 21 सीटें आई, जबकि बीजेपी की 8, वाईएसआरसीपी की 11 और कांग्रेस एक भी सीट यहाँ पर नहीं ला पाई। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ, పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
बुके पीएम मोदी की ओर से दिया गया और अब गले लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर ये सीधी तस्वीरें। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ले चुके हैं शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद हैं और शपथ लेने के तुरंत बाद चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के पास गए। पीएम मोदी ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। हाथ जोड़कर फिलहाल सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीरें। चौथी बार चंद्रबाबू नायडू ने ली है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। 1995 में पहली बार चंद्रबाबू नायडू बने थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और अब 2024 में चौथी बार ऐसा मौका जब शपथ ली गई है चंद्रबाबू नायडू की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर। స్వీకారం కోసం చదువుతున్నాను। గౌరవనీయ గవర్నర్ గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి వర్యులుగా ఎంపికైన వారిచే పదవి మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। मंत्री वर्यु तस्वीरें ये सीधी हिमांशु सर भी इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, पहले तो मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप कमेंट करें। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुखिया के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने ली है शपथ और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो गए, गले पीएम मोदी ने लगाया। आज की डेट में కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। तो पवन कल्याण की ओर से ली गई है शपथ। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पवन कल्याण की ओर से मंत्री के तौर पर शपथ ली गई है। माना यह जा रहा था कि पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, लेकिन पवन कल्याण की ओर से नारा लोकेश शपथ मंत्री के तौर पर నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనం तौर पर ली गई है शपथ। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं। నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలు అనుసరించి
ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నారా లోకేష్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన नारा लोकेश की ओर से ली जा रही शपथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, जिनकी ओर से अब शपथ ली जा रही है। मंगलागिरी से चुनाव जीते हैं नारा लोकेश। सबसे पहले देखिए सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली। दूसरे नंबर पर जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण की ओर से ली गई शपथ मंत्री के तौर पर, और अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश शपथ ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें उनकी आप देख रहे हैं। मंगलागिरी से 91,413 वोटों से जीत कर आए हैं नारा लोकेश। पिछली सरकार में भी टीडीपी की मंत्री रह चुके हैं। हिमांशु सर इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, पवन कल्याण ने मंत्री के तौर पर लिए शपथ। पहले चर्चाएं थी कि उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बनाया जा सकता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात यह है ना, उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं रहता है। इनफॉर्मली वो कहा जाता है उप मुख्यमंत्री, दूसरा जो लेता है पवन कल्याण विल फंक्शन एज एन उप मुख्यमंत्री, मगर ऑफिशियल तौर पे जब शपथ लेते हैं तब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, राज्य के मंत्री ही होते हैं। इसी तरह शपथ लिया जाता है। ये टेक्निकल फॉर्मेलिटी और जिसको पूरा गया चंद्रबाबू नायडू के बाद पवन कल्याण ने शपथ ली। अभी ये वर्किंग अरेंजमेंट होगी कि जो अनाउंस की जाएगी कि वर्किंग अरेंजमेंट में पवन कल्याण ये विभाग संभालेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे, ऐसी अनाउंसमेंट होगी। ये फॉर्मली ऐसा नहीं कहा जाता। कहीं पे भी कोई भी शपथ समारोह आप देख लो, वहां पर जब नरेंद्र भाई मोदी ने जो शपथ लिया था तो वो केंद्रीय मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये बात हमें समझने की जरूरत होती है। और उनके बाद उनके आए चंद्रबाबू नायडू के बेटे। देखिए आपको दर्शकों को बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक जमाने में वहां के साउथ के आंध्र के सुपरस्टार हुआ करते थे एनटीआर के जवाई, और वही नाते उन्होंने टीडीपी बनाई और टीडीपी से सत्ता 4 बार 1950 में से वो 4 बारी मुख्यमंत्री। अभी एनटीआर के काफी संतान, उसमें एक है पुरंदेश्वरी देवी, ये जो कि चंद्रबाबू नायडू की साली है। और पुरंदेश्वरी देवी आंध्र प्रदेश के अंदर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट के ऊपर जीत के आई। चर्चाएं कुछ ऐसी चल रही है कि यह समारोह इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरंदेश्वरी देवी जो के साली चंद्रबाबू नायडू, उनको स्पीकर पद पे भाजपा आरोप करने जा रहा है लोकसभा। तो अभी तक बहुत सी चर्चाएं हमारे मीडिया में चल रही कि स्पीकर पद किसको, टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो चंद्रबाबू नायडू की जो सिस्टर इन लॉ पुरंदेश्वरी देवी, उनका नाम भी स्पीकर पद की चर्चा में अब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बंद कमरों के बीच जो बातें होती है उसमें से कुछ ऐसा निकल के आता है कि नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये तीनों एक जमाने में मुख्यमंत्री थे, तब एक दूसरे के साथ काफी मिलते जुलते थे। एक जमाने में एक दूसरे के कंपटीटर माने जाते। वो तीनों के बीच में काफी कुछ साध लिया गया है। और ये जो बातें, जो अफवाहें और मीडिया रिपोर्ट जो चल रहे हैं, वो रिपोर्ट्स में कोई तथ्य मुझे तो नहीं दिखता। हिमांशु सर ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। मनोहर केसरी भी जुड़े हुए हैं। मनोहर, चूंकि हिमांशु सर मेरे साथ है और उन्होंने जिक्र किया लोकसभा स्पीकर पद का, चर्चाएं तो अभी भी बहुत ज्यादा हैं कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो टीडीपी लेना चाहती है। कब तक पूरी पिक्चर क्लियर होगी? चूंकि आज की डेट में, अगर आज की तारीख में बात करें तो एक तरह से बीजेपी की बैकबोन बन गई है टीडीपी। केंद्र में भी टीडीपी का एक बड़ा रोल, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ पाई है, एनडीए की सरकार बन पाई है। दिल्ली में चर्चाएं किस तरह की हैं? चूंकि जल्द ही जो सत्र है वो भी शुरू होने वाला है, शायद 20 तारीख के बाद किसी भी दिन 24 तारीख के आसपास शायद बताया जा रहा है कि संसद का सत्र शुरू होगा। ऐसे में उससे पहले लोकसभा स्पीकर का चयन करना होगा। देखिए बिल्कुल, अब तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है
पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 24 जून से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो आप 24-25 दो दिन में शपथ ग्रहण के लिए रखा जाएगा, जो लोकसभा के नए सांसद चुन करके आए हैं। और उसके बाद 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर होंगे जो शपथ दिलाएंगे। तो अब आप देखिए, चर्चाएं पहले भी थी कि टीडीपी की ओर से कहा जा रहा था कि जो सीनियर लीडर होंगे उन्हीं को, टीडीपी के जो सांसद होंगे उनको स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी की ओर से तमाम जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं बीजेपी का ही स्पीकर हो सकता है। कई नामों पर चर्चा हो रही है, जो सीनियर होंगे उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं आप देखिए, पूरा सेशन जो है तो 3 जुलाई तक चलना है। राज्यसभा का भी सेशन होगा, जो बजट का सेशन होगा, जो हमारा पूर्णकालीन जो बजट बचा हुआ है उसको पास कराया जाएगा। लेकिन इस बार का सेशन जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि अपोजिशन की काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो कल भी किरण रिजिजू ने इस बात को कहा था कि विपक्ष की जिम्मेवारी है कि आराम से संसद की गरिमा बनाते हुए चलना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से जो सीनियर स्पीकर होंगे, क्योंकि अब आप देखिए 5 बार से ज्यादा वीरेंद्र खटीक जो है वो सांसद करके एक बार फिर आए हैं, और वो काफी नीचे तबके से आते हैं। कहते हैं कि पंचर का काम बनाने का काम होता है, तो इनका नाम सच चल रहा है। तो फगन सिंह कुलस्ते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो स्पीकर के रेस में आगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ओर से किसका नाम जाता है। जी ठीक है हिमांशु सर, तस्वीरें पहले मैं बता दूं दर्शकों को, तस्वीरें सीधी दर्शक देख रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने लिए शपथ। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे आंध्र प्रदेश के, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2014 में, 2019 में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वाईएसआरसीपी का कब्जा हुआ था, यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए थे और प्रदर्शन उनकी पार्टी का अच्छा रहा था। लेकिन चौथी बार अब एक बार फिर से 2024 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार, एनडीए की सरकार जिसे आप कह सकते हैं, चूंकि जनसेना पार्टी भी है, बीजेपी भी है। हिमांशु सर, तकरार की स्थितियां क्या आपको लगता है देखने को मिलेंगी? क्योंकि हमें याद है आंध्र प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार के लिए गए तो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा SC/ST के कोटे पर ये डाका है। ऐसे में और हमने ये भी देखा है कि टीडीपी की प्रायोरिटीज क्या हैं। चलिए हिमांशु सर, मुझे बोला जा रहा है कि आगे दूसरी खबर हमें लेनी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में नई सरकार का हो चुका है गठन और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में